ان کی یادوں کے ساتھ جڑے رہنے کا آپ لوگ یہ آخری ذریعہ ہیں۔ میں آپ سے وہ سب کیسے کہہ دیتا ہوں جو میں کسی اور سے نہیں کہہ پاتا۔ ہجران کی بیماری کا فائدہ اٹھا کے انہیں نہیں دوں گی۔ تم جیسے بدتمیز اور ٹیڑھے لوگوں کو مجھے سیدھا کرنا آتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ریویو روایت ٹی وی۔ ویورز، آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کیا زرمالہ شیریں کو رنگے ہاتھ پکڑ لے گی یا نہیں۔ ویورز، یہاں پہ ایک اور بڑا ٹویسٹ یہ آئے گا کہ جب زرمالہ کا بھائی جو کہ ربیہ کا بھائی فون کرے گا زرمالہ کا پتہ کرنے کے لیے، تو وہ فون سلام خان اٹھا لے گا۔ تو ویورز، کیا اس سے زرمالہ کے لیے مصیبتیں کھڑی ہوں گی یا نہیں؟ ویورز یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سربلند کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو سامنے زرمالہ بیٹھی ہوتی ہے۔ تو زرمالہ کہتی ہے کہ کیا ہوا، آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ تو اس پہ سربلند ایک واقعہ سناتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بڑے بھائی شیر دل خان کی وفات اسی طرح ہوئی تھی، انہیں زہر دیا گیا تھا۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے اس سے تحقیق نہیں کی۔ تو اس پہ سربلند اسے ایسا بات کہے گا کہ اسے چونکا دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں پہلے شک ہی نہیں پڑا کہ کوئی ہمارا نوکر اس طرح بے وفائی ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، غداری کر سکتا ہے، لیکن جب وہ فوت ہو گئے، ان کا قتل ہو گیا، تو رپورٹس میں ہم نے دیکھا کہ ان کے کھانے میں زہر ملتا تھا۔ تو اس طرح ویورز وہ کہتا ہے کہ اب مجھے ذرا خطرہ پڑ گیا کہ کوئی اتنا غدار ہمارے اندر موجود ہے۔ تو یہاں پہ زرمالہ اسے کہتی ہے کہ دیکھیں، آپ ٹینشن نہ لیں، ہر رنگ کے انسان دنیا میں ہوتے ہیں، تو اگر بے وفائی کرنے والے ہیں تو وفا کرنے والے بھی ہیں، بس آپ کو اپنے اوپر دھیان رکھنا ہوگا۔ تو جیسے ہی یہ بات زرمالہ کہتے ہیں تو زرمالہ نظریں جھکا دیتی ہے، اور جو پیار بھری نظر سے سربلند اس کی طرف دیکھتا ہے، ویورز وہ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ ویورز، اگلا سین شفٹ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ شیریں اپنا صندوق کھولتی ہے آگے، اور فوراً کال اٹینڈ کرتی ہے۔ کال اٹینڈ کرتے ہی وہ دروازہ بند کرتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے منگیتر کا فون آیا ہوتا ہے۔ ویورز، یہ وہی ہے جو اس کے پیار میں شدائی ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، جبکہ یہاں شیریں مصیبت میں پڑی ہوتی ہے، کیونکہ شیریں اس شخص سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی، کیونکہ ویورز شیریں صرف سلام خان سے محبت کرتی ہے، اور وہ خود کو اس حویلی کا فرد بنانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ اس کے برعکس یہاں پہ ویورز وہ اس ملازم کے ساتھ بے پیار نہیں کرنا چاہتی، اور نہ ہی اس سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتی ہے، لیکن وہ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں تم سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، اس طرح وہ اس سے یہاں سے آ کے لے جائے گا۔ ویورز، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی محبت کا یقین شیریں کو دلا رہا ہوتا ہے، لیکن جب ویورز شیریں کو یقین نہیں آتا تو شیریں یہاں پہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو، میں تم سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی، تو آج کے بعد مجھے فون نہ کرنا۔ جیسے وہ یہ کہتا ہے تو وہ شیریں آگے سے فون کاٹ دیتی ہے، لیکن اسے لگتا ہے کہ نیٹ ورک کا پرابلم ہے، کیونکہ اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ پیچھے سے وہ آ جاتا ہے شخص، تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو، تم سے زیادہ عزت تو ایک کتے کی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ یہ بات کرتا ہے ویورز، تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ اسے تانا مارتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو، اس پہ یہاں پہ ویورز وہ کہتا ہے کہ دیکھو، تم نے تو ایک اس ربیہ سے محبت کی تھی جو کہ تمہارے منہ پہ تھوک کے چلی گئی۔ یہاں پہ وہ اس کا گلا پکڑ لیتا ہے اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے، اور ویورز اسے کہتا ہے کہ دیکھو، دوبارہ ربیہ کے بارے میں ایسی ویسی کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن ربیہ کے متعلق نہیں۔ ویورز، یہاں پہ کھڑی وہ ساری اس کی ہونے والی منگیتر سارے واقعے سن رہی ہوتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ کس پاگل سے وہ محبت کر بیٹھی۔ سین شفٹ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ زرمالہ یہاں پہ بی جان کی خدمت میں لگی ہوتی ہے۔ وہ بی جان کو پانی سے ان کے ہاتھ وغیرہ صاف کر رہی ہوتی ہے۔ بی جان یہاں پہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ زرمالہ کس طرح ان کی خدمت کر رہی ہے۔ یہاں پہ بی بی جان کو زرمالہ کے اندر شہربانو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہیرو سربلند خان وہ بھی بی جان کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، وہ بی جان کے پیر دوبارہ ہوتا ہے ویورز، اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بی جان اسے کہتی ہیں کہ یہ بچی بہت اچھی ہے، اس نے میری اتنی زیادہ خدمت کی ہے۔ یہاں پہ بی جان زرمالہ سے امپریس ہو رہی ہوتی ہیں، تو ساتھ ہی سربلند کو ایک کال آ جاتی ہے، جس پہ سربلند کہتا ہے کہ ایک کھیت کا مسئلہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ دوسری ٹیم آ کے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی زرمالہ یہ بات سنتی ہے تو زرمالہ یہاں پہ دیکھتی ہے کہ سربلند یہاں سے واپس جانے کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ سربلند کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں ذرا چلتا ہوں۔ تو اس پہ بی بی جان کہتی ہیں کہ اس پہ سربلند کہتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں، مجھے اب ذرا فکر ہو رہی ہے۔ میں نے بھائی جان کو بولا، خان لالا کو بولا کہ ذرا آپ دیکھ لیں، تو لالا کہیں اور مصروف ہیں۔ اس پہ زرمالہ کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، بی بی جان کے پاس میں ہوں۔ ویورز، یہاں پہ زرمالہ انتہائی اچھے انداز سے سربلند سے بات کرتی ہے اور بی بی جان کا خیال رکھتی ہے۔
व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और व्यूअर्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि सरबलंद बीजान को बूस्ट करके यानी कि प्यार करके यहाँ से चला जाता है। और व्यूअर्स, सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जरमाला यहाँ पे बीबी जान की खिदमत बिल्कुल इस तरह कर रही है जैसे एक लड़की अपनी माँ की खिदमत करती है। क्योंकि व्यूअर्स, यहाँ पे जरमाला जिन सदमा से गुजरी है उसके बाद उसे अपने घर की बहुत याद आती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जरमाला का पुराना घर दिखाया जाता है। यहाँ पे जरमाला के मामू और उसका भाई आपस में बात कर रहे होते हैं। उसका मामू कहता है कि मुझे अपने बच्चे की बड़ी फिक्र हो रही है, न जाने वो किस हालत में होगी। यहाँ पे उसका भाई कहता है कि हमें रबिया आपी को फ़ोन करना चाहिए। चूँकि जब जरमाला के साथ ये वाक़या हुआ था तो जरमाला का नाम पहले रबिया था व्यूअर्स। तो फिर इस वाक़े के बाद जब उसको बंदों ने पकड़ के ज़रा उसको जान से मारने की कोशिश की तो यहाँ पे सरबलंद ने उसका नाम रबिया से बदल कर जरमाला रख दिया ताकि उसकी असल पहचान को छुपाया जा सके। व्यूअर्स, यहाँ पे जब वो उसका भाई कहता है कि मैं अपनी बहन को फ़ोन करना चाहता हूँ तो उस पर उसकी माँ मुँह से डांटते हैं। कहते हैं कि अगर हमने फ़ोन किया तो हम बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे जरमाला के लिए, रबिया के लिए, तो इसलिए हमें उसे फ़ोन नहीं करना चाहिए। व्यूअर्स, यहाँ पे भाई की समझ में बात आ तो जाती है लेकिन उसका दिल अभी भी अपनी बहन से बात करने के लिए बेताब होता है। चूँकि वो बहुत परेशान होता है कि क्या पता उसकी बहन जिंदा भी हो गई या नहीं, सही सलामत हो गई या नहीं। व्यूअर्स, यहाँ पे उसके मामू समझाते हैं कि मेरा बच्चा, इस तरह की तुमने कोई हरकत नहीं करनी, अगर तुमने ऐसा किया तो इस तरह हमारे साथ साथ उसकी जान भी ख़तरे में आ जाएगी। ये बात सुन के व्यूअर्स उसका भाई समझ हो जाता है, लेकिन हम आगे जाके देखेंगे कि वो कुछ ऐसा करेगा जो कि रबिया के लिए, जरमाला के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो जाएगा। यहाँ से आगे जरमाला की ज़िंदगी उस एक वाक़े की वजह से बहुत बदल जाएगी। व्यूअर्स, अब हमारे साथ साथ रहिएगा, एंड तक देखिएगा। एंड में हम नेक्स्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन भी करेंगे कि उसमें क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे उसके मामू बहुत ज़्यादा अफसोस करता है कि उन्होंने उनके इकलौती लाडली बेटी उनके हाथ से चली गई। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि रात के इस पहर सरबलंद अपने और जरमाला के लिए कॉफ़ी लेके आता है क्योंकि वो जानता है कि जरमाला ने बहुत ज़्यादा खिदमत की है और जरमाला अब काफ़ी थक चुकी है। व्यूअर्स, यहाँ पे सरबलंद कहता है कि अब मैं काफ़ी थक चुका हूँ। इस पे जरमाला कहती है कि क्या मतलब। यहाँ पे सरबलंद कहता है कि मैंने ज़िंदगी के बहुत से मराहिल देखे और मैंने सब कुछ मेरी ज़िंदगी में उलट पुलट हो रहा है, यानी कि मैंने सरदार बनने की कभी ख्वाहिश नहीं की थी। इधर मेरे बड़े भाई जान शेर दिल चला गया, साथ ही मेरी भाभी भी दुनिया से चली गई, फिर मैंने अपने जिगरी दोस्त को खो दिया, अब मैं बीजान को नहीं खो सकता। व्यूअर्स, जब वो ये बात करता है तो जब बीजान का वक्त आता है तो यहाँ पे जरमाला उसकी तरफ मुँह करके कहती है कि आप मुझे देख लें, मैं भी तो हूँ कि जिसका कोई भी नहीं रहा। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मुश्किलात आती हैं लेकिन जब दुख ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें बांट लेना चाहिए। व्यूअर्स, ये बात सरबलंद के दिल को छू जाती है और सरबलंद एक नज़र से जरमाला को देखता है, लेकिन हमारा हीरो शराफत में डूबा हुआ अपनी नज़रें झुका लेता है। व्यूअर्स, जितना शरीफ इन्होंने सरबलंद को दिखाया है तो इस तरह तो पाकिस्तानी लड़कों को इससे कुछ सीखना चाहिए। और यहाँ से लड़कियों ने अपने हाई कर लिए हैं कि किस तरह सरबलंद अपने उसको ट्रीट कर रहा है, जरमाला को, अपने मेहमान को। इतनी शराफत और इज़्ज़त से हर लड़के को डील करना चाहिए। व्यूअर, सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जब ये दोनों वॉक कर रहे होते हैं तो सरबलंद उसे ऐसी ऐसी बातें कह लेता है कि जो वो कहता है कि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यहाँ सरबलंद कहता है कि मेरा दिल अभी तो मेरे बड़े भाई शेर दिल को नहीं भूला, मुझे भी उनकी याद आती है और साथ ही बानों का वाक़या हो गया, न जाने मैं खुद को कैसे संभाल पाऊँगा। जैसे ही वो ये बातें करता है तो साथ ही जरमाला को कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मैं ये बातें जो किसी के साथ नहीं कर सकता ये मैं आपके साथ कैसे कर लेता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर एक केमिस्ट्री हमें शो होती है। यहाँ पे जरमाला कहती है कि आप मुझे एक बेहतरीन दोस्त समझ सकते हैं और आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये बात सरबलंद के दिल को छू जाती है और सरबलंद एक नज़र जरमाला पे डालता है और जरमाला नज़रें झुका लेती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि लाला मोबाइल चार्ज पे करके बैठे होते हैं। तो मोबाइल होता है इसका शहरबानों का और यहाँ पे भाभी नूर आके कहती हैं कि आप क्यों इसका फ़ोन चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे वो बात को संभालते हुए कहता है कि देखो
यहाँ पे वो व्यूवर्स आपने नोट किया होगा कि लाला अपने आप को नूर के सामने एक इनोसेंट इंसान शो करता है कि जैसे वो तो बहुत ज़्यादा याद कर रहा है नूर को, शहरबानो को, जबकि शहरबानो की मौत का असल कातिल, शहरबानो की मौत की असल वजह सिर्फ यही शख्स है। यहाँ पे वो उसे कहता है कि देखो अभी भी आज भी नूर की शहरबानो की खुशबू बाहर से आती है। व्यूवर्स जैसे ही वो ये बात करता है तो भाभी नूर को ऐसा लगता है कि अभी भी लाला उसको याद कर रहे हैं और उसकी यादों से बाहर नहीं है। व्यूअर्स ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है और वो कहती है कि मेरा शौहर कितना वफादार इंसान है, लेकिन वो हकीकत को नहीं जानती। व्यूअर्स सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे वो कहती है कि आप इसको फ़ोन को रहने दें और मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, व्यूअर्स हम देखेंगे कि जिस गलती का हम सबको पछतावा था वो रबिया के भाई ने कर दी। उसने सीधे कॉल की उस नंबर पे जो कि अली ख़ान ने उसको दिया था, और ये नंबर किसी का नहीं बल्कि ये नंबर शहरबानो का था। जैसे ही लाला ख़ान यहाँ पे फ़ोन उठाता है तो यहाँ पे वो मनूस मारा क्या कह देता है, व्यूअर्स आप सुनिएगा खुद। वो कहता है कि ये फ़ोन किसका है, तो इस पे ख़ान कहता है कि आप बच्चा कौन बोल रहे हो। यहाँ पे व्यूअर्स वैसे बात करेगा कि जिससे ख़ान की आंखें खुले की खुली रह जाएंगी। व्यूअर्स वो कहता है कि मैं रबिया बाजी का भाई बात कर रहा हूँ, जो कि मुदस्सर की बीवी हैं। 6 महीने पहले मुदस्सर भाई का कत्ल हो गया था। और व्यूअर्स जैसे ही वो ये बात करता है तो ये बात करते साथ ही लाला समझ जाता है कि यहाँ खिचड़ी क्या चल रही है। वो उसे कहता है कि बच्चा रॉन्ग नंबर, क्योंकि अब उसने अपने जहन में एक और खिचड़ी तैयार कर ली। उसने कुछ ऐसा सोचा व्यूअर्स जो आगे चल के सरमाला के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि बीबी जान को लेकर सरबुलंद और जरमाला और उस घर की तरफ निकल रहे होते हैं हॉस्पिटल से। तो हम देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पे एक शख्स उन पे नज़र रखे होता है। वो जैसे ही ये लोग गुजर रहे होते हैं तो वो किसी को कॉल करता है। कॉल करने के साथ ही वो मोबाइल निकाल कर इनको कैप्चर करना शुरू कर देता है। व्यूअर्स हमें पता चलता है कि ये एक जासूस होता है जो कि खान के कहने पे इन पे जासूसी कर रहा होता है। व्यूअर्स यहाँ पे साथ ही वो अपने सरदार को फ़ोन करता है और ये सरदार सरबुलंद के मुखालिफ होता है। यहाँ पे वो उसे कॉल करता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि सरबुलंद के साथ कौन सी लड़की घूम रही है। यहाँ पे खान उसे कहता है कि तुम्हें लाला कैसे पता चला, तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे वो कहता है कि आपने जिस तरह मेरी बेइज्जती की थी उसका मैंने हिसाब चुकाने के लिए मैंने उन पर नज़र रखी हुई थी। तो साथ ही मुझे पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं, एक वही है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। व्यूअर्स जैसे ही वो ये कहता है तो यहाँ पे हमें दिखाया, यहाँ पे व्यूअर्स वो उसकी कैप्चर करके उसको यहाँ पे उसकी वीडियो बनाकर भेज देता है। और जैसे ही ये खान उसे कहता है कि ये देखो, यहाँ पे वो उसे नहीं देखता, क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो उससे कहता है कि मैं किसी और की लड़की को नहीं देखूंगा। और यहाँ पे वो कहता है कि जब से मैं अपनी रबिया के अलावा किसी को नहीं देखूंगा। व्यूअर्स यहाँ पे हम देखते हैं कि तस्वीर में और कोई नहीं रबिया होती है, ये तो उसने नहीं देखा होता और यहाँ पे इस खान को भी पता नहीं होता कि वो रबिया ही है। व्यूअर्स हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे शख्स बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और ये हर हालत में रबिया को पाना चाहता है। यहाँ पे हम सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि लाला ने एक शख्स को, अपने वफादार शख्स को बुलाया। व्यूअर्स ये और कोई नहीं बल्कि ये बानो के कातिल का वाज गवाह भी है। और यहाँ पे इसको खान को इस पे इतना भरोसा होता है कि खान इसे कहता है कि सरबुलंद के जो दोस्त था मुदस्सिर, उसकी बीवी का मुझे पूरा बायोडाटा चाहिए और याद रहे ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। यहाँ पे व्यूअर्स वो उसे हदायत देता है कि तुम्हें उसका मुतालिक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन तलाश करके लानी है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि बी जान घर आ चुकी होती हैं और बीबी जान की खिदमत सरबुलंद खुद और जरमाला कर रहे होते हैं। यहाँ पे जरमाला और बीबी जान, जरमाला और सरबुलंद एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि कौन सी दवाई किस टाइम बाद बीबी जान को देनी है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे खान, लाला और उसकी बेगम भाभी नूर आ जाते हैं। इनको देखते साथ ही जरमाला पर्दा करते हुए, हया करते हुए वहाँ से चली जाती है। व्यूअर्स हम देखते हैं कि यहाँ पे भाभी नूर से कहती है कि जरमाला तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। यहाँ पे वो कुछ भी जवाब दिए बगैर यहाँ से चली जाती है। व्यूअर्स हम देखते हैं कि भाभी नूर बीबी जान से माफ़ी मांगती है और उसे कहती है कि मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पता लेने हॉस्पिटल नहीं आ सकी थी, क्योंकि मैं घर नहीं थी और मैं अपने आप का पूरा ख्याल रखूँगी। यहाँ पे बीबी जान उसे कहती है कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जरमाला ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और
यहाँ पे सरबलंद भी हमायत करते हुए कहता है कि हाँ, जरमाला ने बीबी जान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जरमाला बीबी जान की खिदमत में लगी होती है। व्यूअर्स, यहाँ पे वो बिल्कुल अपनी वालदा जैसा इनको समझती है और उनकी दिल से चाहत से मोहब्बत करती है। बीबी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उनकी पैरों की मसाज कर रही होती है और जिससे बीबी जान को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। व्यूअर्स, हम यहाँ देखते हैं कि वो जिस तरह बीबी जान को देख रही होती है, उसको उनके अंदर अपनी माँ नज़र आ रही होती है, चूँकि उसको ज़िंदगी में माँ का प्यार नहीं मिला था। और जैसे ही बीबी जान उससे बात करती थी तो उसे लगता था कि मेरी माँ मुझसे बात कर रही है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि अगले रोज़ बीबी जान के नाश्ते के लिए जरमाला किचन में पहुंच जाती है। बीबी जान के लिए ज़रा हेल्दी चीज़ें बना रही होती है, तो साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे शीरीं आ जाती है और शीरीं कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जैसे ही वो उससे बात करती है, जरमाला इस पर कोई जवाब नहीं देती। व्यूअर्स, हम यहाँ पे देखते हैं कि जरमाला यहाँ पे बहुत ज़्यादा खामोशी से और समझदारी से डील करती है उसे, लेकिन यहाँ पे शीरीं कहती है, ऐसा जुमला कहती है कि जिससे उसे मुंह तोड़ के जवाब जरमाला दे देगी। यहाँ पे वो कहती है कि तुम जो बीबी जान के बीमारी का फ़ायदा उठाकर उनके करीब होने की कोशिश कर रही हो, ये मैं अच्छे से जानती हूँ और ना जाने तुम्हारे सरबलंद के साथ क्या संबंध है। व्यूअर्स, जब यहाँ तक बात पहुँची है, जरमाला ने अपने ऊपर काबू रखा होता है, लेकिन जैसे ही वो अगली बात करती है, वो कहती है कि चलो निकलो यहाँ से, ये हमारा किचन है और हम खानों का खाना, सरदारों का खाना मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। जैसे ही उसे धक्का देने लगती है, उसका हाथ पकड़ती है, तो यहाँ से पे जरमाला साथ ही उसका हाथ मरोड़ कर उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। यहाँ पे हम देखते हैं हमारी पुरानी जरमाला वापस आ चुकी होती है। वो उसे कहती है कि तुम जैसे टेढ़े और बदतमीज़ लोगों को सीधा करना मुझे अच्छे से आता है और मेरे तुम सब्र का इम्तिहान मत लो। जितना कमज़ोर तुम मुझे समझ रही हो, मैं उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर हूँ। व्यूअर्स, जैसे ही वो ये बात करती है और वो उसे कहती है कि तुम जैसे टेढ़े लोगों को मुझे सीधा करना आता है, दोबारा मेरे साथ ऐसे बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगी और मैं तुम्हारी शिकायत सरबलंद को कर दूंगी। व्यूअर्स, जैसे ही वे बात करती है, यहाँ पे शीरीं चुप करके चली जाती है और यहाँ पे व्यूअर्स सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे सरमाला खाना लेके आ रही होती है भाभी बी जान का। भाभी नूर इसको रस्ते में पकड़ लेती है और उसे कहती हैं कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा कि यहाँ पे खाना ना लाया करो, तुम यहाँ मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो, फैमिली मेम्बर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जरमाला जब भाभी नूर की तल्ख बातें सुन रही होती है तो वह यहाँ पे कुछ जवाब नहीं देती, बस ये वो यहाँ पे इतना कहती है कि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है और मुझे ये जिम्मेदारी सरबलंद ने खुद दी है। व्यूअर्स, जैसे ही वो ये बात करती है, वो मज़ीद कोई बात नहीं करती। वो जैसे ही बात करती है तो साथ ही सरबलंद आ जाता है। यहाँ पे जरमाला चली जाती है तो सरबलंद कहता है कि मैंने खुद बीबी जान के खाने की जिम्मेदारी जरमाला को दी है क्योंकि मुझे उस पर पूरा एतबार है और आपको भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। व्यूअर्स, जैसे ही वो ये बात करते हैं, यहाँ पे भाभी नूर उसकी तरफ देखती है और एक आ बढ़ती है क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि अब हम सरबलंद के आगे नहीं ज़ुबान चला सकते क्योंकि सरबलंद एक सरदार है और सरदार का मानना सबकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे भाभी नूर अपने इंसल्ट महसूस करती है और यहाँ से चली जाती है। व्यूअर्स, आगे हम देखेंगे कि अब यहाँ अपने इस तकलीफ़ का बदला, अपनी इस बेइज्जती का बदला किस तरह भाभी नूर लेगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि बीबी जान यहाँ पे आके जब बैठती हैं खाने के लिए, यहाँ पे सरबलंद उनके आराम से बिठा रहा होता है। सरबलंद इंतहाई बेहतरीन बेटे होने का फ़र्ज़ अदा करता है और वह बीबी जान की बहुत ज़्यादा खिदमत करता है और यहाँ पे जरमाला भी उनके लिए आज बड़ा हेल्दी खाना लेके आई होती है। थोड़ा सा खाते हैं तो वो कहती हैं कि मुझे जरमाला के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। व्यूअर्स, हम यहाँ पे देखते हैं कि बीबी जान चूँकि ज़्यादा थकी होती हैं और ज़रा बीमार होती हैं तो वो कहती हैं बच्चे बच्चे बॉस, मैंने ज़्यादा नहीं खाना। व्यूअर्स, यहाँ पे जरमाला कहती है कि आप कुछ तो खाएं, चलें ये छोड़ें, मैंने आपके लिए इतना मज़े का शेक बनाया है, ये तो ज़रूर पिएं। व्यूअर्स, यहाँ पे बीबी जान एक दो सिप लेती हैं और बस कर देती हैं। हम देखते हैं कि सरबलंद अपनी वालदा की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहा होता है, जिसको देख कर जरमाला बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। जरमाला साथ ही उनके लिए फ्रूट काटती है और उन्हें कहती है आपको ये तो खाने ही होंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे भाभी नूर जब खाना लाला खान को परोस रही होती हैं तो यहाँ पे वो ज़रा खामोशी इख्तियार करती हैं, वो उससे कोई बात नहीं करती, लाजमा कर कुछ खाना देकर चली जाती है, लेकिन भाभी नूर यहाँ पे कुछ नहीं कहती। व्यूअर्स, यहाँ पे जब खान उसकी खामोशी को देखते हैं तो खान उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, आज तुम ज़्यादा चुप चुप क्यों हो। यहाँ पे वो कुछ नहीं कहती, लेकिन जब खान के फोर्स करने पर वो कहती है कि मेरा मुंह बंद किया है तो आपके छोटे भाई ने किया है
वो कहता है क्या? वो कहती है हाँ, मुझे सरबलंद ने चुप करा दिया, मुझे सरबलंद ने ठोका है। जैसे हुई बात करती है तो इस पे वो उसे कहता है मुझे वजाहत दो। वो कहती है कि आज मैंने जरमाला को रोका कि तुम खाना लेकर ना जाओ, तो इस पे सरबलंद ने मुझे चुप कराया और कहा कि भाभी ये मैंने उसे खुद जिम्मेदारी दी है। तो इस पे भाभी नूर कहती है कि भले ही वो हमारा सरदार है, लेकिन बड़े भाई तो आप हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस लड़की को दो टके दो औकात क्या है उस लड़की की, उसको यहाँ से बाहर निकाल दें। यहाँ पे हम व्यूवर्स देखते हैं कि यहाँ पे खान खामोशी से कहते हैं कि हाँ तुम टेंशन ना लो, मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि खान के जहन में एक नई खिचड़ी चल रही होती है। व्यूवर्स आप ये देखेंगे कि आगे आगे उसने जरमाला की बर्बादी के लिए क्या क्या प्लान तैयार कर रखा है। व्यूवर्स जिसने अपने खुद की बहन को नहीं छोड़ा, 4 बानों को अपने हाथों से कत्ल कर दिया, वो जरमाला के साथ क्या करेगा। व्यूवर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आप हमारे साथ आगे नेक्स्ट वीडियो भी देखते रहें और सारे ड्रामे का एक्सप्लेनेशन हमारे साथ एंजॉय करें। व्यूवर्स अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। व्यूवर्स सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे सरबलंद आता है और वो कहता है बीबी जान अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे बीबी जान कहती हैं कि बादशाह इतनी खिदमत मेरी जरमाला ने कर दी है कि मुझे तो अब इसने इतना फिट कर देना है कि मैंने यहाँ से भागने लग जाना है। ये बात सुनकर सरबलंद मुस्कुराता है और वो आराम से बैठ जाता है। व्यूअर्स यहाँ पे बीबी जान के कंधे जरमाला दबाना शुरू करती है और बिल्कुल अपनी वालिदा से खिदमत करती है, जो कि देख कर सरबलंद भी काफ़ी मुतासर होता है। लेकिन हमारा हीरो अपने नज़रें नीचे रखता है, जो कि इस कहानी का पूरा सबसे खूबसूरत पार्ट होता है। व्यूअर्स यहाँ पे हम देखते हैं कि जब जरमाला खां उनकी खिदमत कर रही होती है तो साथ ही यहाँ पे बीबी जान कहती हैं कि जरमाला मेरी बहुत ज़्यादा खिदमत कर रही है, और ये कहकर वो सरबलंद की तरफ देखती हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जब शीरी आती है खाना लेकर, वो इतनी इस तरह की खिदमत देकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि किस तरह जरमाला बीबी जान के करीब हो रही है। और वो व्यूअर्स यहाँ पे जूस देती है सरबलंद को और वो उन्हें कहती है पी लो। व्यूअर्स यहाँ पे 3-4 दफ़ा फोर्स करती है। ये चीज़ जरमाला को बहुत ज़्यादा अजीब लगती है कि आगे तो कभी शीरी ने इतना फोर्स नहीं किया और ना ही कभी यहाँ रुकी। तो जैसे ही सरबलंद पीने लगता है, साथ ही जरमाला उसको ना का इशारा करती है और हमारा हीरो फ़ौरन ग्लास रख देता है। और यहाँ पे जरमाला बात को संभालते हुए कहती है कि आप किसी मैंने एक काम लगाया था, आपको मैंने कहा था कि बीबी जान के लिए जैतून का तेल ले आएंगे। यहाँ पे शीरी समझ जाती है कि जरमाला ने उसको जूस पीने से रोक दिया। यहाँ पे शीरी फिर से फोर्स करती है कि खान जी जूस जल्दी से पी लें। ये चीज़ जरमाला को बहुत अजीब लगती है कि वो बार बार इतना फोर्स क्यों कर रही है। यहाँ पे वो कहती है कि अभी यहाँ पे साथ ही खान जी कहते हैं कि मैं बाद में पी लूँगा, तुम ये ले जाओ। तो वो कहती है कि चलो ठीक है। व्यूअर्स जैसे ही वो लेके जाती है तो यहाँ पे आंखों में जरमाला और सरबलंद की बातें होती हैं कि ये क्या हुआ था। व्यूअर्स यहाँ पे हम देखते हैं कि शीरी वो जूस लेके जाकर फ़ौरन फेंक देती है और साथ ही जरमाला ये सब कुछ देख लेती है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या जरमाला ने शीरीन को पकड़ लिया जूस के साथ या फिर शीरीन को कहीं जूस पिला दिया। व्यूअर्स आपको अगले एपिसोड में सब कुछ बताएंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन अल्लाह हाफिज़।